Good evening, I am Garima. This is Jago Himachal 365 TV, डर के नहीं डट के, and you're watching Hill Coast News Channel. Let's start today's headline. At 80,834, India COVID-19 cases lowest after 71-day daily positivity rate falls below 5%. 1.17 lakh Covishield doses received vaccination from June 14. Shiv Sena was treated as slaves in erstwhile BJP government in Maharashtra. Transformer pole damaged power supply hit. 370 new cases, 17 deaths in Himachal. 12 killed, 138 injured in gas explosion in China's Hubei province. 40,000 fake Favipiravir shipped from Cuttack to Gwalior. Warning from Kejriwal after lifting Delhi curbs. Now news in detail. At 80,834, India COVID-19 cases lowest after 71 days daily positivity rate falls below 5%. India reported 80,834 fresh COVID-19 cases, the lowest after 71 days, while the daily positivity rate further dropped to 4.25% according to the Union Health Ministry data updated on Sunday. With the fresh cases, the country's tally to cases has climbed to 2,94,39,989. The COVID-19 death toll climbed to 3,70,384 with 3,303 fresh fatalities. The data updated at 8 am showed 1.17 lakh Covishield doses received vaccination from June 14. The state government today received 1.17 lakh vaccination from Serum Institute of India. It would now organize more sessions from June 14 to 18 to utilize the entire consignment. A government spokesperson said that the entire consignment of 1,17,830 vaccines were received today instead of the earlier phased delivery schedule of June 16, 26 and July 2. Now the health department will hold daily vaccine sessions from June 14 to 18 to utilize the entire consignment, he added. Shiv Sena was treated as slaves in erstwhile BJP government in Maharashtra, Sanjay Raut. The Shiv Sena was virtually treated as slaves and attempts were made to finish off the party politically when it was in power with the BJP in Maharashtra from 2014 to 2019. Sena MP Sanjay Raut has alleged addressing Sena workers in Jalgaon in North Maharashtra on Saturday. Raut said the Shiv Sena had a secondary status in the previous government and was treated like slaves. Attempts were also made to finish off our party by misusing the very power which was enjoyed because of our sport. Heavy rain accompanied by a thunderstorm, high velocity winds and lightning have wreaked havoc in Palampur, Bajnath and Jasimpur subdivisions of Palampur. In the past 2 days, there were widespread damage to property, particularly to transmission lines of the state's electricity board. Lower areas of Palampur, the worst hit, where many transformers of the Himachal Pradesh State Electricity Board have suffered heavy damages. Electricity poles too were damaged as trees fell on supply lines. The power supply remains suspended in many parts of the region. The technical staff of HPSEB was working round the clock to restore the supply. Officially, sources said several transformers and electrical installations were totally destroyed by lightning. These are either being replaced or repaired. 370 new cases, 17 deaths in Himachal. As many as 370 COVID cases were reported in the state today, taking the tally to 1,98,313. Besides, 17 persons died of virus in the past 24 hours. 4 deaths were recorded in Shimla, 2 each in Kangra, Mandi, Solan, Chamba and Sirmaur, 1 each in Unna, Hamirpur and Kulu. The highest 116 cases were reported in Kangra, followed by 60 in Mandi, 24 in Shimla. 12 killed, 138 injured in gas explosion in China's Hubei province. A gas pipe explosion in a residential community in a central Chinese city killed 12 people and injured 138. State media CCTV reported Sunday 150 people were evacuated following the deadly accident in the city of Xi'an in Hubei province. It said which 37 are critically injured. The explosion caused a food market building to collapse at 6:30 am. Local media reported footage from CCTV shows wreckage and shattered glasses covering the first floor of the collapsed building, where people were having breakfast and buying groceries when explosion happened. People can be seen walking in the rubble-strewn street between damaged buildings. Hospitals in Xi'an are asking residents to donate blood as the injured are still under emergency treatment.
Around 40,600 spurious COVID drug Favipiravir tablets were shipped from Odisha to Gwalior in Madhya Pradesh after these were brought from Noida in Uttar Pradesh to Cuttack, authorities here said on Saturday. Warning from Kejriwal after lifting Delhi curbs. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Sunday announced more relaxation for the national capital, which was seen strange curve during the second wave of the coronavirus disease COVID-19 to check the spread of infection. Kejriwal, however, warned that if the number of daily cases spike, his government will again impose curbs. His daily caseload has been falling in Delhi over the past few weeks, and on Saturday it recorded 213 cases of COVID-19 with the positivity rate dropping to 0.30%. Thank you and stay connected with Hillquest. हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है जागो हिमाचल 365 डर के नहीं डट के और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दोनों छोर से चलेगा शिमला मटोर 4 लेन काम, दिल्ली में अप्रूवल कमेटी के पास पहुंची फाइल। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को लेकर अफवाह फैलाने का मामला दर्ज। हिमाचल में 17 कोरोना संक्रमितों की मौत, 65 दिनों बाद सबसे कम 383 नए पॉजिटिव। हिमाचल में सक्रिय मामले 5000, बंदिशें हटाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हिमाचल पहुंचा मानसून, इस बार 13 दिन पहले दी दस्तक। सोमवार से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार, दुकानदारों टैक्सी ऑपरेटर को मिलेगी राहत। 18+ को कल से लगातार 5 दिन लगेगी वैक्सीन, 1 दिन पहले बुक करवाना होगा स्लॉट। कांग्रेस से प्रभारी ने उपचुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने का दिए निर्देश। हिमाचल की होटल कारोबारी तैयार, अब मेहमानों का इंतजार, कल से बदल जाएंगे पर्यटकों के लिए नियम। उम्र 60 पार, रक्तदान कर चुके 90 बार, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हमीरपुर के सतपाल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। दोनों छोर से चलेगा शिमला मटोर 4 लेन काम, दिल्ली में अप्रूवल कमेटी के पास पहुंची फाइल। शिमला मटोर 4 लेन का निर्माण दोनों छोर से शुरू होगा। शिमला से हीरानगर के बीच 3 सुरंगें बनेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI पैकेज 5वीं के टेंडर के बाद अब पैकेज 1 शिमला से शालाघाट तक की टेंडर प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। इस पैकेज के निर्माण का मामला दिल्ली में अप्रूवल कमेटी के पास पहुंच गया है। इसकी स्वीकृति के बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। शिमला से शालाघाट तक 30 किलोमीटर लंबी सड़क 4 लेन बनने के बाद 22 किलोमीटर रह जाएगी। इस पर लगभग 1400 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। हालांकि NHAI रिव्यू कर रहा है कि शिमला से शालाघाट तक 4 लेन बनाया जाए या डबल लेन। कई विशेषज्ञ इस सड़क मार्ग को डबल लेन बनाने के हक में हैं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि डबल लेन के 2 अलग अलग मार्ग बने तो 4 लेन भी बनेगा, वो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को लेकर अफवाह फैलाने पर मामला दर्ज। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर अफवाह फैलाना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट के आधार पर सोलन में FIR दर्ज हुई है। यह FIR नगर निगम के उप महापौर राजीव कुमार कोड़ा ने दर्ज करवाई है। उन्होंने शिकायत में जानबूझकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के उप महापौर राजीव कुमार कोड़ा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने लिखा है कि शुक्रवार देर शाम एक झूठी खबर सोशल मीडिया में फैला दी। सोशल मीडिया पर लिखा, कोरोना की जंग हारे हजारों दिलों की धड़कन, एक्स चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह नो मोर। इन शब्दों के पोस्ट होने के बाद लोगों में अराजकता और रोष का माहौल बन गया। शिकायतकर्ता ने शिकायत में लिखा है कि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जानबूझकर डाली गई, जिस कारण लोगों को आघात पहुंचा है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस मामले की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है।
हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 17 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। शिमला जिले में 4, जबकि कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और सोलन में 2-2, वहीं ऊना, कुल्लू व हमीरपुर में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में नए कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। करीब 65 दिनों बाद एक दिन में 383 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को 380 और 7 को 514 नए मामले आए थे। इसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। शनिवार को कांगड़ा जिले में 116, मंडी 60, शिमला 44, चंबा 33, सिरमौर 25, सोलन 23, ऊना 25, हमीरपुर 15, बिलासपुर 17, किन्नौर 10, कुल्लू 8 और लाहौल स्पीति में 7 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 830 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,98,313 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,89,522 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 5,402 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,368 संक्रमितों की मौत हुई है। हिमाचल में सक्रिय मामले 5,000, बंदिशें हटाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बसें चलाने और पर्यटकों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट एंट्री के फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग का मानना है कि कोरोना बंदिशों में छूट देने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ सकते हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों, सीएमओ और बीएमओ को अलर्ट किया है। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर सक्रिय है। अस्पतालों में अभी भी 10% मरीज गंभीर हैं। हिमाचल में एक्टिव मामलों की संख्या भी 5,000 से ज्यादा है। इन्हीं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब बिना कोविड जांच के सैलानी और अन्य लोग हिमाचल आ सकते हैं। इससे इन लोगों के साथ संक्रमण भी हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। बसें चलाने को लेकर अगर सख्ती नहीं की गई तो संक्रमण एक से दूसरी जगह पहुंच सकता है। किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसलिए सभी जिलों के सीएमओ, बीएमओ समेत मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और नर्सों को फील्ड में तैनात किया गया है, उनकी प्रॉपर जांच की जाए। हिमाचल पहुंचा मानसून, इस बार 13 दिन पहले दी दस्तक। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इस बार सामान्य से 13 दिन पहले मानसून ने हिमाचल में दस्तक दी है। इससे पूर्व वर्ष 2000 में 9 जून को मानसून ने हिमाचल में प्रवेश किया था। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। इससे पहले हिमाचल में 26 जून मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख मानी जाती रही है। बीते दिनों मॉनसून विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के हिमाचल में प्रवेश करने की संभावना जताई थी। सोमवार से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार, दुकानदारों, टैक्सी ऑपरेटर को मिलेगी राहत। प्रदेश में सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील के साथ सभी व्यापारिक संस्थान शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सरकार के इस फैसले से दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। इससे परिवहन सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। हालांकि निजी बसों के पहिए अभी भी जाम हैं, जिसके चलते चालक परिचालक दिहाड़ी लगाने को मजबूर हैं। टैक्सी ऑपरेटर भी पूर्ण अनलॉक का इंतजार में बैठे हैं। अभी तक लोग अपने निजी वाहनों में बाजार में पहुंच रहे हैं, जबकि बिना वाहनों वाले लोग पैदल ही खरीदारी को पहुंचते हैं। इसके साथ ही रेहड़ी फड़ी वालों भी रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब सरकार के फैसले से सभी वर्गों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। 18+ को कल से लगातार 5 दिन लगेगी वैक्सीन, 1 दिन पहले बुक करवाना होगा स्लॉट। हिमाचल प्रदेश में अब 18+ वालों को 5 दिन लगातार वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले इस आयु वर्ग को वैक्सीन 14 और 17 जून को लगनी थी, लेकिन अब 15, 16 और 18 जून को भी लगेगी। कांग्रेस सह प्रभारी ने उपचुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने का दिया निर्देश। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त से राजीव भवन शिमला में मुलाकात की। हिमाचल की होटल कारोबारी तैयार, अब मेहमानों का इंतजार, कल से बदल जाएंगे पर्यटकों के लिए नियम। लंबे समय से परेशानी झेल रहे होटल कारोबारियों के दिन अब बहुत बदलने वाले हैं। होटल कारोबारी मेहमानों के स्वागत को तैयार हो गए हैं।
बस अब मेहमानों का इंतजार है। चाहे हिमाचल पर्यटन निगम के होटल हो या स्थानीय निजी होटल, सभी मेहमानों के लिए तैयार हो गए हैं। बीते 2 साल से धर्मशाला के होटल व्यवसायी मंदी का दौर झेल रहे हैं। ऊपर से कोरोना महामारी ने व्यवसाय को चौपट करके रख दिया है। पर्यटकों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर देने का लाभ होटल कारोबारियों को मिलेगा। अन्य राज्यों से धर्मशाला मैक्लोडगंज आने वाले पर्यटकों को अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। उम्र 60 पार रक्तदान कर चुके 90 बार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हमीरपुर के सतपाल शर्मा। INEFT हमीरपुर के संस्थापक सतपाल शर्मा एक कुशल कारोबारी के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। वह समाज सेवा के लिए हर समय आगे रहते हैं। मूल रूप से हमीरपुर जिले के पंसाई निवासी सतपाल बताते हैं कि वो साल में कम से कम 2 बार रक्तदान अवश्य करते हैं। इस उम्र में भी उनका यह जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि कोरोना काल में भी जब किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ी तो उन्होंने तुरंत रक्तदान किया। सतपाल बताते हैं कि पहली बार मैंने 1975 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान रक्तदान किया था। कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप में हमने भी रक्तदान किया। उसके बाद किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर रक्तदान किया था, लेकिन उसमें मुझे जो खुशी मिली थी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।